Hello, students. Today we are going to understand the top 5 mistakes which students do while preparing for the competitive exams. Myself, Deepak Malik, an IITian who is currently an IIT JEE chemistry teacher, and I have taught thousands of students with myself cracking the competitive exams and mentoring thousands of students with such vast experience. I am telling you the top 5 mistakes which students make while preparing for competitive exams. There are lakhs and crores of students who are giving every year competitive exams in India for government jobs or getting admission into IITs or AIMS, right? But everyone is not successful. What's the reason? There is the 5 mistakes which students make which makes them unsuccessful, and there are who don't commit these 5 mistakes, who work on these 5 mistakes, they ultimately get successful, they become IS officer, they become an IITian, right? So now let us understand what are those 5 mistakes. First one is distracted mind, second one is drowsiness while studying, third is no prioritization, fourth is subject imbalance, and fifth is passive learning. Now we are going to understand each and every mistake with Shastric reference from Bhagavad Gita with full authenticity. So now let us start with the first mistake, that is distracted mind or cluttered mind. So distracted or cluttered mind means doing multitasking while you are studying, scrolling reels. 5 मिनट पढ़ाई किया, फिर 2 मिनट रील स्क्रॉल किया, या यूट्यूब शॉर्ट स्क्रॉल किया, समझ गए? या किसी को कॉल मिला लिया, या कोई फ्रेंड आ गया उससे बात करने बैठ गए, फैमिली मेम्बर आ गया कोई उससे बात करने बैठ गए, या वो डे ड्रीमिंग करने लग गए, किसी और के बारे में सोचने लग गए. सो दिस इज ए क्लटर्ड डिस्ट्रैक्टेड माइंड, राइट? So we need absolute focused mind if you want to get successful, if you want to become an IAS officer, if you want to become an IIT, you need absolute 100% focused mind, right? So how to get this focused mind? यू कैन मैं खुद क्या करता हूँ इस फोकस्ड माइंड के लिए, मैं सुबह 3:30 बजे उठता हूँ, फिर 1 घंटे में अपना रूटीन एक्टिविटीज़ करके 2 घंटा मेडिटेशन करता हूँ. सो इससे मैं अपने माइंड को साफ करता हूँ थ्रू आउट द डे. देन आई एम इफेक्टिव इन वट एवर आई एम डूइंग. आई हैव फोकस्ड माइंड, राइट? सो in Bhagavad Gita 2.41, it is said, Vaya Atmika Buddhir Eka Kurunandana. Means our intelligence should not be multi-branched. It should be focused intelligence. That focused intelligence only will lead you to success. And we should eliminate the distractions and stay one-pointed, focused like Arjuna. जैसे अर्जुना का केवल ध्यान किस पे था? मछली की आंख पे. इसलिए एक ऐसे ही अपना भी ध्यान केवल अपनी पढ़ाई पे होना चाहिए. सेकंड मिस्टेक क्या? ड्राउजीनेस और लो एनर्जी. जब हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते नींद आ गए, है ना? हैवी खाना खा के हम पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली नींद आएगा, ड्राउजीनेस होगा. तो हमें अपने खाने का भी ध्यान रखना है. इवन भगवद गीता में कृष्ण ने खुद बोला है, युक्त आहारस्य विहारस्य युक्त स्वप्न बोधस्य, है ना? भगवद गीता 6.17, श्लोका नंबर 6.17 में आप पढ़ सकते हैं. तो इसमें इसका मीनिंग क्या है? आवर बैलेंस फूड, वी शुड बी बैलेंस्ड इन आवर फूड, स्लीप एंड रिक्रिएशन एक्टिविटीज, राइट? सो इन सब का भी हमें ध्यान रखना है. एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड. वी शुड लिव ए रेगुलेटेड लाइफ फॉर अलर्टनेस, राइट? ऐसा नहीं है कभी भी सो रहे हैं कभी भी उठ रहे हैं. सो दैट्स हाउ विल नॉट बी अलर्ट. So we should live a disciplined and regulated life. Then alertness will come in our life, and then we'll get away from drowsiness. Third mistake is no prioritization. तो हम बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं किसी एक फेवरेट सब्जेक्ट को पढ़ने में, समझ गए? वी आर बायस्ड टुवर्ड्स वन सब्जेक्ट. भगवद गीता 2.47 क्या बोलता है? कर्मण्यवाधिका रस्ते. हमें वो करना है जो हमारी ड्यूटी है, ये नहीं कि जो हमें पसंद है, समझ गए? तो हमें पसंद तो बहुत कुछ है, बट हमें करना क्या है? जो हमारी नीड है, जो हमारे लिए ज़रूरी है, जो हमारी ड्यूटी है, समझ गए? सो वी शुड फोकस ऑन आवर ड्यूटी, नॉट जस्ट व्हाट वी लाइक. सो प्रायोरिटाइज वाइजली अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम नीड्स. फोर्थ मिस्टेक इज इग्नोरिंग सम सब्जेक्ट्स. सो प्रॉब्लम क्या है? अनइक्वल अटेंशन टू द सब्जेक्ट्स.
भगवद गीता 2.48 क्या बोलता है? समात्वम योग उच्यते। इसका मतलब क्या है? इवन माइंडेडनेस इन रियल योगा। मीन्स जैसे हमारी बॉडी को बहुत सारे आइटम्स की ज़रूरत होती है, विटामिन्स की, मिनरल्स की, है ना, फैट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की। केवल प्रोटीन खा के हम जिंदा थोड़ी रह सकते हैं, हमें हर एक चीज़ चाहिए। इसलिए हमें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेसफुल होना है तो सभी सब्जेक्ट को बैलेंस करके पढ़ना पड़ेगा। इज इट क्लियर? फिफ्थ मिस्टेक इज पैसिव लर्निंग। पैसिव लर्निंग का मतलब क्या है? कि जो चीज़ें माइंड को आसान लगती है हम उन चीज़ों को करना पसंद करते हैं, है ना। वॉचिंग आसान क्या लगता है? वॉचिंग लेक्चर्स विदाउट एक्टिव रिकॉल, है ना। केवल लेक्चर देखते जा रहे हैं, यूट्यूब खोल लिया, वो लेक्चर खोल लिया और उसको बस सुनते जा रहे हैं। दैट्स अ पैसिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग इज कि हमने लेक्चर देख रहे हैं, फिर उसके नोट्स बना रहे हैं, फिर उसको एक्टिव रिकॉल कर रहे हैं कि पिछले आधे घंटे में सर ने क्या पढ़ाया, 15 मिनट में क्या पढ़ाया है ना। उसमें क्वेश्चंस लिख रहे हैं, उसकी समरी बना रहे हैं, है ना, उसको रिकॉल कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। दैट्स एक्टिव लर्निंग। वी शुड ट्राई टू एंगेज मोर एंड मोर सेंसेस in active learning, so that's how that will be retained in our mind, and who retains that in mind, that ultimately reproduces in the exam and he gets successful, right? So in Bhagavad Gita 4.34 it is said tad vidhi pranipatena, मतलब वन शुड इंक्वायर फ्रॉम द गुरु। जितना आप टीचर से क्वेश्चंस पूछेंगे उतना आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी, और जितना आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी उतना अच्छे से आप एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर पाएंगे और आप सिलेक्ट हो पाएंगे। इज इट क्लियर? So meaning is true learning involves inquiry and revision. So revise, ask questions and engage deeply. Then only you will get successful, right? So avoid these 5 mistakes, right? We should have focused effort, balanced routine. You should do your duty, stay balanced, revise and inquire. So final takeaway क्या है? जो अपना एंशियंट विस्डम है, that is भगवद गीता, that is very practical for our modern times success, right? So